Today we will try to understand what is the classification of lakes or how lakes are classified. Lakes can be classified on the basis of composition, origin and situation. As you know, when we say composition, it means whether the lake is freshwater lake or salt water lake. Simple. Origin, when we say origin, then whether the lake is of glacial origin or it may be solution origin or structural type of origin. So third one is situation, whether the lake is a lowland or highland type of lake or coastal type of lake. So these three terms will help us for the classification. When we see river lakes, so those lakes which are classified are as river lakes, we see the delta lakes, Oxbow lakes or Rift lakes. So these three lakes are to be classified as river lakes because these are formed by the rivers. As you know, when the river enters into the sea, deltas are formed, and near the delta lakes are formed. Those are known as delta lakes, and that is why they are to be classified as river lakes. Similarly, Oxbow lakes and Rift Valley lakes. Next is groundwater lakes. Coastal region lakes and sick lakes are to be classified as groundwater lakes. Next one is tectonic lakes. Those lakes which are formed due to movement of tectonic plates, or we can say earthquakes happen or occur, and we classify those lakes or name them earthquake lakes and classify them as tectonic lakes. Similarly, Rift Valley lakes, Basin Range lakes, you may have listen, Rift Valley of Africa. Rift Valley of Africa have so many types of lakes, and those are to be classified as tectonic lakes. Volcanic lakes, crater lakes. So crater lakes are to be classified as volcanic lakes because due to the eruption of volcano, craters are formed. These hollow depressions, which can be of any shape, but are hollow depressions when water collects in these places and formation and lakes are formed and are to be classified as volcanic lakes. Shore lakes or dune lakes are to be classified as shore lakes. As you may have known that these dune lakes are formed along the coastal areas and are shallow and irregular in shape. So these dune lakes are to be classified as shore lakes. Continental glaciation lakes, marine lakes or marine lakes, rock basin lakes, ice dam lakes. So these three lake or lakes are to be classified as continental glaciation lakes because they are formed due to the glaciation in the continental areas. Mountain glaciation lakes, as you may have seen, due to landsliding in the mountainous areas or due to the landsliding in the those areas where almost glaciation is common and the lakes are formed, and those lakes are to be categorized as mountain glaciation lakes or also valley marine lakes. These valley marine lakes are also classified as mountain glaciation lakes. Desert lakes, Palayas, salines, and alluvial dam lakes are to be classified as desert lakes. I will repeat the classification of lakes for your easy understanding. ये जो लैक्स है इनको क्लासिफाई किस बुनियाद पे किया जाता है? कंपोजिशन, ऑरिजिन और सिचुएशन.
जब कंपोजिशन की बात हम करेंगे, कंपोजिशन इस तरह से हम किसी लैक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर लैक का पानी फ्रेश होगा, उस बुनियाद पे हम बताएंगे कंपोजिशन क्या है लैक की, या सॉल्ट लैक्स की, या सॉल्ट लैक्स होगा तब हम बताएंगे सॉल्ट लैक्स है। लिहाजा एक लैक की कंपोजिशन या एक किसी इसमें जो पानी होगा वो फ्रेश होगा, या दूसरे लैक में पानी जिसमें साल्टनेस होगी। इसी तरह से हम ऑरिजिन की जब बात करेंगे, क्या ये ये लैक जो है ये ग्लेशियल ऑरिजिन का लैक है, ग्लेशियर की वजह से वजूद में आया, सॉल्यूशन टाइप ऑफ किसी वजह से सॉल्यूशन की टाइप जो वजूद में आया है लैक, या स्ट्रक्चर कहीं ऐसा स्ट्रक्चर है इसका जिसकी वजह से इसका ऑरिजिन हुआ है। सो तीन टर्म्स है इसके लिए कि किस ओरिजिन का लैक हो सकता है जिससे हमें आसानी होगी क्लासिफाई करना लैक को। इसी तरह से सिचुएशन की बुनियाद जब हम बताएंगे लोलैंड लैक है, हाईलैंड है या कोस्टल लैक, तीन तरह के। क्या ज़मीन की सतह जो लोलैंड की एरिया जो लो होगा ज़मीन की सतह, तब हम बताएंगे इस सिचुएशन का लैक है। अगर ज़मीन बहुत ही ऊंची सतह समंदर से होगी तो उस तरीके से भी हमें सिचुएशन का पता चलेगा। अगर कोस्टल एरियाज में होगा तो हम तब भी बताएंगे किस सिचुएशन का लैक है। सो सिचुएशन की बुनियाद पे भी हम इजी होगा, आसान होगा लैक को क्लासिफाई करने में। अब रहा सवाल, जब मुख्तलिफ तरह के लैक्स जब बन जाते हैं तो किस तरह से हम उनको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। मसलन रिवर लैक की बात करेंगे, डेल्टा लैक्स, ओक्सबो लैक्स और रिफ्ट लैक्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये तीनों लैक्स जो है ये रिवर लैक्स है, क्योंकि ये रिवर के बहने की वजह से वजूद में आते हैं या इसी रिवर की वजह से बन जाते हैं। ग्राउंड वाटर लैक्स, कास्ट रीजन लैक्स या सिंक लैक्स जो होते हैं उनको हम ग्राउंड वाटर लैक्स में क्लासिफाई करते हैं। कि आप जानते हैं कास्ट टोपोग्राफी में जब जो रॉक्स होते हैं सॉल्युबल होते हैं और जो केव्स बन जाते हैं उन केव्स के दब जाने की वजह से जमीन में बहुत बड़ा एक हॉलो डिप्रेशन बन जाता है सॉल्युबल रॉक्स को। जब क्योंकि जो ये रॉक्स होते हैं सॉल्युबल है, स्पेशली डोलोमाइट और लाइमस्टोन जो होते हैं, तो वहाँ ग्राउंड में बहुत बड़ी डिप्रेशन बन जाती है। तो उस टाइप के लैक को हम ग्राउंड वाटर लैक्स में क्लासिफाई करते हैं या सिंक लैक्स जिस तरह होते हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे टेक्टोनिक लैक्स की, उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो लैक्स वजूद में आते हैं, जब जलजले आते हैं तो जब बहुत बड़ी हॉलो डिप्रेशंस, बहुत बड़ी बड़ी हॉलो डिप्रेशंस जो ज़मीन के अंदर बन जाती है जलजले के वक्त, उसको हम कैटेगराइज या नाम देते हैं अर्थक्वेक लैक। फिर उसी को हम क्लासिफाई करते हैं टेक्टोनिक लैक्स में। या रिफ्ट वैली, जिस तरह से आपने नाम सुना होगा रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, उसमें बहुत सारे लैक्स हैं जिनको टेक्टोनिक लैक्स में कैटेगराइज या हम कहेंगे क्लासिफाई किया गया है। बेसिन रेंज लैक्स को भी टेक्टोनिक लैक्स में क्लासिफाई किया गया है। वोल्केनिक लैक्स, क्रेटर लैक्स, क्रेटर आपने नाम सुना होगा। क्रेटर एक हॉलो डिप्रेशन होती है जब वोल्केनो इरप्ट होता है। जब ये इरप्शन इसका कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बाद में एक हॉलो डिप्रेशन बन जाती है जिसमें पानी जमा हो जाता है, फिर वो लैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं वोल्केनिक लैक्स में। इसी तरह से शोर लैक्स, डून लैक्स आते हैं। इसमें डून लैक्स को शोर लैक्स में हम क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो ड्यून लैक्स होते हैं, ये ड्यून लैक्स अलोंग द शोर्स और अलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ सीज एंड ओशंस होते हैं, इनमें बन जाते हैं। ये बहुत शैलो होते हैं और किसी भी इरेगुलर शेप के होते हैं, ज़्यादातर इसी इरेगुलर शेप्स में होते हैं और उनको हम शोर लैक्स में क्लासिफाई करते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशिएशन लैक्स, मरीन लैक्स, रॉक बेसिन लैक्स और आइस डिम लैक्स, जो नाम आपने सुने होंगे, इन
को हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशिएशन लैक्स में कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह से वैली मोरिन लैक्स और लैंडस्लाइड लैक्स को हम माउंटेन ग्लेशिएशन लैक्स में क्लासिफाई करते हैं। प्लायाज का नाम जो आपने सुना होगा, ये ऐसे छोटे छोटे डिप्रेशंस ज़मीन में होते हैं, स्पेशली कहाँ पे, ड्राई लैंड्स पे, जैसे डेजर्ट एरियाज हैं, छोटी छोटी डिप्रेशंस, उनमें पानी जमा, बारिश का पानी कम ही देर तक जमा रहता है, उनको हम प्लायाज कहते हैं। और उनको हम डेजर्ट लेक्स में क्लासिफाई करते हैं, या सेलाइनस कहीं कहीं होते हैं। इसी तरह से एलुवियल डैम लैक्स भी होते हैं, जिनको हम क्लासिफाई डेजर्ट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैक्स जो ज़मीन पे बनते हैं, कहीं फ्रेश या सॉल्ट कंपोजिशन होगी, ग्लेशियल ऑरिजिन होगा, सॉल्यूशन टाइप और या स्ट्रक्चरल ऑरिजिन होगा लैक का, लो लैंड पे होगा, हाईलैंड पे या कोस्टल एरियाज में। जिस तरह से मैंने बात की यहाँ पे ड्यून लैक्स की, मुख्तलिफ कैटेगरीज इन्हीं कंपोजिशन, ऑरिजिन और सिचुएशन की बुनियाद पे हम डिफरेंट नाम या क्लासिफिकेशन करते हैं, इनकी अलग अलग नाम देते हैं, उनको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से वजूद में आए हैं, यानी ऑरिजिन इनका क्या है, या इनकी कंपोजिशन क्या है, या किस सिचुएशन पे बने हैं। जैसे शोर पे बना है कोई, कोई माउंटेन एरिया में बना है, कोई लोलैंड पे डेजर्ट एरिया में बना है, और कोई वैली में बना है। इसी बुनियाद पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। इस तरह से हमने आज लैक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल